When our heart gets connected with God, when we get connected with God, our spirit becomes alive. जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारी आत्मा जीवित हो उठती है, जागृत हो उठती है. And we begin to love God with our spirit. और हम परमेश्वर से अपनी आत्मा के द्वारा प्रेम करने लगते हैं. And then we have to bring our mind into subjection so that we can love God with our mind. और उसके बाद हमारे दिमाग को हमें नियंत्रण में लाने की आवश्यकता होती है कि हम अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से परमेश्वर को प्रेम कर सकें. And then we can love God with all our strength. जो कुछ भी हम में सामर्थ्य है उसके द्वारा हम परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं. Now, if we do it with all our heart, with all our soul, with all our mind and with all our strength, then nothing is left for anything else. अगर हम पूरे हृदय के साथ और पूरी मन के साथ, पूरे आत्मा के साथ और पूरी सामर्थ के साथ परमेश्वर को प्रेम करें तो कुछ भी बाकी नहीं बचता. We don't have anything left for anything else, anybody else. हमारे पास किसी और चीज के लिए, किसी और व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं बचता. So how is it possible that we can fulfill the second commandment? तो हम यह कैसे संभव है कि दूसरी आज्ञा को पूरा कर सकें? That is to love our neighbor as ourselves. कि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर सकें. And that is possible because God doesn't grab everything. यह संभव है क्योंकि परमेश्वर सब कुछ ले नहीं लेता. He takes everything that we have and he replaces it with what he has. परमेश्वर सब कुछ जो हमारे पास है वह स्वीकार करता है और उसे परमेश्वर के पास जो है उससे बदल देता है. And that's how it's possible for us to do the second thing. If we love our neighbor with our own strength, with our own things, we will not be able to love them as we should love. अगर हम अपने पड़ोसी से अपने ही ताकत से, अपने ही प्रयास से प्रेम करने की कोशिश करें तो हम नहीं कर सकते. Why? Because we want one thing for us and we want another thing for the other person. क्योंकि हम एक चीज अपने लिए चाहते हैं और दूसरी चीज दूसरे के लिए चाहते हैं. That's the human nature. ये मनुष्य का स्वभाव है. When we speak lie to somebody else, we say, oh, we did a good job. जब हम किसी और से झूठ बोलते हैं, किसी चीज को छुपाते हैं, तो हम कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है. But somebody tells a lie to us, and we come to know that he has said a lie. We get upset about it. जब कोई दूसरा व्यक्ति झूठ बोलता है और हम ये जान जाते हैं कि उसने हमसे झूठ बोला है तो हम बड़े क्रोधित हो उठते हैं उसमें. Why? Because we have double standard. क्योंकि हमारे पास दो मापदंड हैं. We measure ourselves with one measure and we measure the other person with a different measure. हम एक नाप से अपने आप को नापते हैं और दूसरे नाप से हम दूसरे व्यक्ति को नापते हैं. But when we get connected with God, जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, जब हमारा परमेश्वर के साथ योग हो जाता है, then His nature gets transferred into us. और परमेश्वर का स्वभाव हम में आ जाता है और जैसे जैसे हम उस स्वभाव में बढ़ते हैं, we begin to love other people like God loves people. तो हम दूसरे लोगों को उसी रीति से प्रेम करने लगते हैं जैसे कि परमेश्वर लोगों को प्रेम करता है. Then we don't want to extract things from people, but we want to give things to people. और उस स्थिति में हम लोगों से किसी चीज को निकालने की कोशिश नहीं करते हैं, किंतु हम लोगों को देना चाहते हैं, लोगों की सहायता करना चाहते हैं. Then we don't want to fulfill our selfish motives, but we want to fulfill the other people's need. तब हम अपने स्वार्थ को न देखते हुए दूसरे लोगों की आवश्यकता को पूरा करने की कोशिश करते हैं. That's what the Lord Jesus Christ is trying to say. Love your neighbor as yourself.
अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। जैसा हम अपने आप से प्रेम रखते हैं, जैसा हम अपने लिए चीज़ों को चाहते हैं, वैसे हम अपने पड़ोसी से प्रेम रखें। So that as we love ourselves, we can love other people. Like we want things for ourselves, like we want things to happen for ourselves, we will like other people to have the same thing, same kind of things in their life. And that's the thing Lord Jesus Christ is trying to say, that love your neighbor as yourself. And the second thing that happens is, when we love other people, we have limited resources. जब हम लोगों से प्रेम करते हैं तो हमारे पास केवल सीमित साधन हैं। We can do only this much. हम केवल थोड़ा ही कर सकते हैं। We can only help little bit. हम केवल थोड़ी सी सहायता कर सकते हैं। But Lord Jesus Christ can help lot more. किंतु प्रभु यीशु मसीह बहुत ज़्यादा सहायता कर सकते हैं। And when we get connected with Him, when we begin to love Him fully, He begins to give us some of those things. He begins to hear our prayers and answer them. और जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, परमेश्वर की नज़दीकी में आ जाते हैं, परमेश्वर से प्रेम करने लगते हैं, तो परमेश्वर हमें उन चीज़ों को हमें देना शुरू कर देता है। वह हमें धीरे धीरे लोगों तक उन आशीषों को पहुंचाने के लिए उन चीज़ों को देना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, Apostle Paul, before he came to the Lord Jesus Christ, he was going and killing people. जैसा कि हम देखते हैं पौलुस के बारे में कि वह प्रभु यीशु मसीह के पास आने से पहले लोगों को जाकर उन्हें मार डालता था। He was a cruel man. वह बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल और बहुत ही ज़्यादा भयानक व्यक्ति था। And when he met Jesus, जब उसने प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात की, then things changed. और चीज़ें बदल गई। And he became a person who began to help people. और वह इतना बदल गया कि वह लोगों की सहायता करने लगा। Then he was even willing to die for other people. और उसके बाद वह यहाँ तक कि अपने प्राण को देने के लिए भी तैयार था दूसरों के लिए। The same person who was killing others was now willing to die for others. और वही व्यक्ति जो पहले दूसरों को मारता था, अब दूसरों के लिए प्राण देने को भी तैयार था।